ये अभी कनेक्ट हुआ था जायसवाल जी, अभी जस्ट हाँ सर, हाँ सर। आई थिंक नाउ अभी आ रहा है सर। आ गया Can this? Yes, sir. So now we are getting you. I think you can. मैं अभी डेस्कटॉप कनेक्ट करने सर की कोशिश कर रहा हूँ। लॉग आउट, आपका डबल लॉगिन हो गया सर बाबूलाल सर, आपका डबल हो गया, इको हो रहा है वॉइस। आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर लिए लग रहा है। हाँ अभी ठीक है, अभी लैपटॉप नहीं तो हाँ, दूसरे वो को अभी कर। दो सर बना दिया हूँ आपको होस्ट। यस आई थिंक नाउ वर्मा सर रिकॉर्डिंग शुरू किए या नहीं पता नहीं। नहीं कर दिया आप, प्लीज गो हेड। अच्छा ओके। डॉक्टर बाबूलाल को बीच में टाइम मिला था, आई स्टार्टेड इट, सो इट रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। So Dr. Babulal, you are welcome and you can start your class. अभी लेकिन आपका 2 लॉगिन है सर। जस्ट गोइंग टू स्टार्ट सर। हाँ कोई नहीं, एक को आप ऑफ कर दीजिए या लॉग आउट कर दीजिए एक से। So warm good afternoon sirs. गुड आफ्टरनून सर। के सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। आप तो मोदी जी जैसा दाढ़ी बना लिए। हाउ आर यू। वी आर फाइन, आई एम फाइन। हाँ बिल्कुल सर, ये कोरोना के पीरियड में अभी धीरे धीरे सबका वही हाल होने वाला है। मेरा तो जिंदगी में मैंने इतना बड़ा बाल कभी नहीं रखा था। लास्ट तीन महीने से सैलून जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आई नो, बहुत चक्कर है। श्रुतिका सिंह, disabled participant screen sharing, so kindly give me the host control. sir, right. K Verma sir, network bandwidth is low. Sir, your now you are having one connection, so I will make you host, sir. Right sir. Now you are host. Dr. Babulal is the host now. And recording is going on, and as I said, by 10 in the evening I try to load it on my YouTube channel, and subsequently I pass on to ISTD, so you all can avail if you want to see and watch, as Sriya Chauhan had queried. So sir, today we will be talking of use of audio visual aids in our presentations. So see, finally the purpose of audio visual aids is for improving communication effectiveness, and the objective of this particular session is how to make use of AV aids for improving the effectiveness of our presentations and improved outcome of training. So one of the method of improving the effectiveness of communication, particularly when we are talking of complex topics, like how does look like a coronavirus. So are you able to see this particular video, sir?
Yes, yes, sir. Yes, sir. तो आप देखेंगे कि in Microsoft Power presentation, I included a link of this particular video, and here you can see how effectively the learner can visualize the spread of virus, its composition, constitution. So that is the power of AV tools. So how clearly it is showing the constitution of the virus. So these are the spike as proteins, you know, and when these proteins are put into the soap solution, they get dissolved and virus finally gets killed. Another important aspect of audiovisual tools is we can incorporate GIF files. GIF files are nothing but these are small animated files, and using these files, we can improve the effectiveness of our presentation. Here in this case, so this GIF file shows the status of spread of coronavirus. So in any presentation, these GIF files can be incorporated, and the participants or the learners can get a feel how the virus is getting spread, and depending on the type of topic, type of subjects, these GIF files can be made and incorporated. Another way of we can incorporate the videos which are there in the social media, and one of the example which I am showing is a YouTube video can be incorporated in our presentations. So you just incorporate the link, and then the moment you click on the link, it will take us to the video. Shreya Chauhan has come. So you see, now we are directly reaching and here the particular aspect we have incorporated is the podcast. So podcasts are nothing but small audio files which are there, and there are many sources of podcast. One is the YouTube, then Google audiobook, Castbox. So many these tools are available, and even we can make our own podcast and can incorporate, or we may ask our senior person who is not in a position to physically come to the site, to the classroom. So his podcast may be recorded in the form of audio file, and it can be incorporated in our presentations. So in the communication process, this is our standard chart. I keep on referring. So feedback is very important. Whatever we are communicating, the feedback is very important. So in any of the AV presentations, it should facilitate feedback taking from the participants. So many tools are available, which we will be talking later on. In previous class, we have covered power of tools. So today we are in a position to communicate with each other when the whole world is under lockdown,
and still we are in a position to communicate. So it is all about using technology. So technology enhances our effectiveness. And then in the last session, we covered about the sense organs. So there are total 5 plus 2 sense organs. And in this particular AV, we will be effectively using 2 organs only. Then visual cues are very, very powerful. So many times, even you have not to speak the words, even you have not to show the picture, but the visual cue, through visual cue, we can communicate our concepts, our ideas, our knowledge. And in the last lecture, we have covered almost all sort of medias through which AV could be applied. So there are audio aids, there are projected and non-projected aids, just like your flip charts and many other tools which we have discussed. And then audio visual aids like use of computers, screening of films. And another aspect which we'll be covering in the next is activities, the action-based activities. So this will form our next lecture. And we also studied that the maximum learning happens by the use of AV as well as kinesthetics, that is by action activities. So where the engagement level of the learner is very, very high. So we as trainers, we have to take into account both AV aspects and even non-AV aspects. So, and AV, the particular aids helps in supplementing the spoken words, whatever we are speaking, and if we can provide additional inputs to the learner by way of a picture, by way of a video, by way of audio from authentic sources, then I think it will supplement the transmission of the learning from the facilitator to the learner. And the purpose of all these tools is to improve the real life experiences. Say particularly the coronavirus video which I just showed to you. If I just explain by words, then it will be very, very difficult for you to capture the essence of the virus, how it works, how it spreads. So that is the power of these tools. Then it helps in developing the concepts, improve attitude and external appreciation of, and enhances the interest also of the participants. So this aspect also we have covered. Now, why AV tools are gaining importance? So this aspect we have to understand very, very carefully, and until and unless we understand this aspect, we will not be able to appreciate the usage part of AV tools. So Jaiswal sir, बताइएगा कि why according to you this AV tools are gaining importance? सर जो भी नॉलेज हम अक्वायर करते हैं इट इज थ्रू आवर 5 सेंसेस. वेरी राइट. एंड जो एवी टूल है नाउ जो द clarity of knowledge that we gain depends on how many sense organs are involved in acquiring the knowledge. So जितना ज़्यादा भी sensory organs touch होगा उतना ज़्यादा हम जो है knowledge को better gain कर पाएंगे. So जो audio visual tools है उसमें इतना बढ़िया और इतना clarity के साथ चीज़ों को दिखाया जाता है. For example, अगर मैं simply कहूँ कि मैंने आज पिज़्ज़ा खाया, so nobody will appreciate. But जब मैं पिज़्ज़ा का एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा उसमें वो गर्मी जैसे है वो स्टीम निकल रहा है और उसका जैसे वो चीज़ मेल्ट हो करके है,
So all these things हम लोग मतलब देखते हुए भी we can start feeling the taste of cheese and जो भी उसके toppings रहते हैं. So quality of learning that way improves if you use the audio visual tools. बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है. बट मेरा जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली कि आज के टाइम में व्हाई इट इज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. Because that is the ऐसे only कौन tool से available. ड्राइवर्स हैं विच आर रियली पुशिंग अस टू अडॉप्ट दिस AV tools in our learnings? Sir, may I? Because virtual learning आज के दिन में हो रही है. We are not facing each other and learning in a classroom. So हम सब diverse locations में हैं, and AV tools are the only methods through which we can communicate now in today's scenario. Sir, can I explain? Jitendra here. Yes. Sorry, sir. Sorry, Sudeep sir. Sorry to interrupt you in between of that. No. I'm finished. Sir, as per the pandemic, the situation is changing drastically. The learning methodology is also changing. We are using the online platform to learn anything or to taking a training on that platform. So as per the learning methodology, the kinesthetic learning is going on increase day by day. Day by very good. So kinesthetic learning, as the Sudeep sir said, ki whatever we are just explaining, it will be very reconnected to whatever we are seeing on the screen. Like if you are talking about, जैसे अभी sir ने the sir has run the video about the coronavirus. In the audio visual, it was clearly depend what was the spike of the corona, what was the mucus of the coronavirus, and how it has been spreaded all over the places. So that is important. That is also important for us, being as a kinesthetic learner, to reconnect with the data as well as the video. बहुत बढ़िया. अच्छा रूपेश जी, would Sir. you like to add something, sir? या श्योर सर, डेफिनेटली. इसमें मेरा पॉइंट एक है सर कि माइंड हमारा ऑलवेज पिक्टोरियल फॉर्म में किसी चीज को अंडरस्टैंड करता है. दिस इज द बेसिक आई मीन क्वालिटी ऑफ माइंड. सो ये ऑडियो शुरू से विजुअल शुरू से रहा है, वो जल्दी हम कैच करते हैं चीजों को देख करके. बट नाउ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज द आई मीन necessary because we cannot go physically in a training room or anywhere else. So इस सिचुएशन में ये अब इम्पोर्टेंस इसका डे बाय डे बहुत बढ़ गया. आई मीन फॉर द लास्ट 1 year इट हैज इंक्रीज. बट हमारा माइंड जो हमेशा पिक्टोरियल फॉर्म में चीजों को कैच करता है. तो हम जब वीडियो देखते हैं तो ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है इंस्टेड ऑफ आई मीन हियरिंग समथिंग और राइटिंग समथिंग और रीडिंग समथिंग. सर एक छोटा सा एग्जांपल इसका है, जैसे बच्चों का है जी. वो उनको टेबल याद करने को बोलिए वो याद नहीं होता है, बट कार्टून का एक डायलॉग याद होता है. व्हाई? बिकॉज दे सी एवरीथिंग, मूवमेंट एंड जो पिक्चर्स उस फॉर्म में. सो इफ और आज के दिन में जैसे फॉर एग्जांपल बाइजूस वगैरह जितने भी हैं, तो learning tool, they are using basically these animations to make an impact on the minds of children. So that is how we learn, and nowadays that is why it is becoming increasingly important to use. जायसवाल जी, मैं आपको जस्ट सप्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी नातिन है, शी इज अबाउट 5 years of age. हाँ सर. एंड यू वोंट बिलीव कि वो प्रैक्टिकली 12 से 14 घंटे कार्टून देखती है, और उसको खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है. बट उसका एक पॉजिटिव आउटकम जो मैं अभी जो देखा रिसेंटली, मैं कई बार अपनी उसकी मदर कहती भी रहती है कि इसको हटाओ. मैंने कहा नहीं यार, मैं तो अपने बच्चों को, अब मेरे जो और नाती पोते होंगे, कि उनको नेसेसरी 5-6 साल के लिए तो फुल्ली उसको कार्टून दिखाओ. बिकॉज उसकी जो अंग्रेजी है ना सर, हाँ, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई यूएस का बच्चा बोल रहा है. उसका फोनेटिक्स, उसका स्टाइल और उसकी कमांड ऑन इंग्लिश वर्ड्स, जबकि उसको किसी ने लंबी चौड़ी अंग्रेजी नहीं सिखाई, बट थ्रू दोज कार्टून्स उसका ऐसा हो गया. बिकॉज वो टोटल 14 घंटे कोई बंदा उसमें रहेगा, उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड दिखाई नहीं दे रहा. शी इज अज्यूमिंग हरसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट एंटायर इकोसिस्टम. और वही यूएस के बच्चों जैसी स्टाइल, और वही एग्जैक्टली जैसे लगता है यार ये बच्चे कहाँ से सीखे हैं. तो दिस वाज वन ऑफ द रिवीलिंग थिंग टू मी. यार लोगों के अंग्रेजी इतनी बढ़िया भी हो सकती है विदाउट एनी फर्दर
intervention from the school or anybody else. तो ये एक इसका aspect है. बट आज की डेट में सर जो सबसे बड़ा जो ड्राइवर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसकी वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. हम एक वुका वर्ल्ड में रह रहे हैं आजकल, तो लोग इसको बोलते हैं वुकार्ड. वर्ल्ड इज टोटली वोलेटाइल, एम्बिगुअस है, कॉम्प्लेक्स है और डिजिटल डिसरप्शन है. तो एवरी टाइम यू नो प्रोडक्ट बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की नॉलेज लेवल्स इतने फास्ट रिकूप करने पड़ते हैं. तो एक्सटर्नल एनहांसमेंट ऑफ द नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कैसे हो सकता है? विदाउट एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इट कैन नॉट हैपन. क्योंकि कंपनीज के पास भी इतना टाइम नहीं कि एक कोई प्रोडक्ट या कोई एक कंसेप्ट आया इमीडिएटली एक नेक्स्ट कंसेप्ट आपका तैयार हो गया. पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इतनी ज्यादा है एंड इट हैज टू बी स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. और उसके लिए इन टूल्स की बहुत ही जरूरी है. और धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन में एक और चीज नई आ रही है कि जेन वाई का काफी आ रहा. और जो नेक्स्ट जनरेशन जो मैं अभी बात कर रहा था, ये जो अभी लेटेस्ट वाले हैं, तो सारे डिजिटल नेटिव्स हैं. दे आर सो कंफर्टेबल विद द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी के टूल्स के लिए तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. तो इन लोगों का क्या है कि एक इनको टूल को यूज करना और टूल को रियली मतलब इवन यंग स्टूडेंट्स कैन क्रिएट ए ब्यूटीफुल वीडियो, स्लाइड्स बढ़िया बना सकते हैं. और प्रेजेंटेशन स्किल्स आप देखोगे जो बच्चा 3rd 4th में है वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा कर लेता आजकल. तो डिजिटल नेटिव्स के लिए ये सारे टूल्स रेडीली अवेलेबल हैं एंड मेनी ऑफ देम आर फ्री आल्सो. ओनली चीज चाहिए आपको, अपना कंसेप्ट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए. देन टूल्स इज नो बैरियर, प्रैक्टिकली फ्री है. आप देखोगे कि हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं प्लस आपका ये जूम कर रहे हैं, तो छोटे ऑडियंस के लिए तो प्रैक्टिकली इट इज फ्री. तो द होल वर्ल्ड इज फॉर यू. सो एक आजकल नई समस्या क्या होगी कि शॉर्टेंड अटेंशन स्पैन है. किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनेगा. तो इमीडिएटली आप उसको पिक्चर दिखाइए, उसको ऑडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए एंड इन शॉर्टेस्ट टाइम पीपल वांट टू ग्रैब द नॉलेज. और एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड रिलेवेंट. एक ये हो गया कि ऐसा नहीं कि आज कोई कंसेप्ट सीख लिया तो इट विल टेक यू फॉर ऑल टाइम्स टू कम. एवरी टाइम यू हैव टू लर्न. तो लर्निंग के टूल्स के बिना ऐसा कुछ हो नहीं सकता. देन दूसरा है कि प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. आज हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन होगा जिसमें सारे मल्टीमीडिया के गैजेट्स होंगे. इट कैन रिकॉर्ड, इट कैन इवन कैप्चर द वीडियो एंड इट कैन प्ले द वीडियो. तो ये सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होने का मतलब ये हुआ कि जो ease of reach to these tools is very easy, both for the learner as well as for the trainer also. कि ट्रेनर के पास एक मोबाइल के अंदर इतने सारे टूल्स हैं जिसमें आप ऑडियो भी बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, उनको एम्बेड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशंस में. तो ये सारे के सारे आर फोर्सिंग अस टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजीज. देन इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट. अब गांव-गांव में, घर-घर में फाइबर ऑप्टिक्स रीच कर रही है. और जो बिगेस्ट फिनोमेना विच इज हैपनिंग इज, आप देखेंगे कि जो 5G का पेनिट्रेशन इंडिया में हो रहा है, अभी ट्रायल चल रहे हैं, तो यू विल सी कि 5G के अंदर द स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 20 gigabits per second. व्हाट इट इम्प्लाइज इज कि ये एक आपकी हाई डेफिनेशन 2-2.5 घंटे की जो वीडियो का जो आपकी फिल्म है उसको ये 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आप डाउनलोड कर लोगे. जबकि 3G जब हम लोग कर रहे थे एंड लॉन्ग नॉट फार डिस्टेंस, हार्डली 10 साल पहले आपको 1 किलोबाइट्स में भी डाटा पैकेट को पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा. सो दैट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी. तो ये सारे के सारे इट विल फर्दर बूस्ट द यूसेज ऑफ दिस AV टूल्स.
जो कन्वेंशनल टूल धीरे धीरे जो फ्लिप चार्ट्स वगैरह उनका बहुत ही रेयर केसेज में होगा, क्योंकि आज अगले 5 सालों के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, ऐसी कोई स्पेस नहीं बचेगा विच इज नॉट कवर्ड विद नेटवर्क. तो इंटरनेट इज नाउ बिकमिंग ए ऑल परवेसिव मीडिया अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब. इसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है. और आप ये देखोगे कि ई लर्निंग का मार्केट जो है इट इज गोइंग टू एक्सीड $375 बिलियन. तो ट्रेनिंग डोमेन में जबरदस्त स्कोप है, प्रोवाइडेड वी एज ट्रेनर्स आर इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. जैसे अभी somebody was talking of Byju's. Byju एक ऐसी कंपनी है जो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करके now it is becoming a global company and it is reaching to every household of India, not only India. अब वो बाहर भी उनका बहुत बड़ा सेटअप आने वाला. तो इस तरह की एक नहीं, so many sites have come जहाँ पे आप 24/7 लर्निंग कर सकते हो. पेड कोर्सेज है, नॉन पेड कोर्सेज हैं. So that is the power of audiovisual tools. And then there is schools are becoming smart and virtual classrooms is becoming a reality. अब ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसके अंदर वर्चुअल क्लासरूम्स नहीं हो, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं हो. नाउ सबसे बड़ा जो ड्राइवर दूसरा है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ so many tools and platforms. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सभी लोगों के पास फेसबुक पे अकाउंट होगा, ट्विटर पे होगा, किसी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, वीचैट एंड मैनी मोर. तो इतने सारे ईज ऑफ, एक तो कैरियर, मीडिया कैरियर इज रेडीली अवेलेबल, और इन हर एक के पास हर एक के अपने अपने छोटे छोटे टूल्स है एंड वी कैन क्रिएट आवर स्मॉल ब्लॉग्स. ब्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा. सर ये जितेंद्र जी का माइक ऑन रह गया, उसको ऑफ कर दीजिए सर एज होस्ट. जितेंद्र जी का माइक ऑफ कर दीजिए, वो उनका आवाज आ रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है. काइंडली स्विच ऑफ द माइक. ठीक है ना. आप अपना मैसेज डाला. एमपी तो बंद है, एमपी तो बंद है. तो आप देखोगे पावर पॉइंट अभी भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यू हैव टू टेक पेड सब्सक्रिप्शन फॉर दिस. बट मैं अभी यूज जो कर रहा हूँ, मैं गूगल स्लाइड्स यूज कर रहा हूँ. तो मैंने गूगल स्लाइड्स इज अगेन ए वेरी वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर जो फ्रीली आपको अवेलेबल होता है. गूगल में आप अकाउंट खोलो, फ्री अकाउंट खुलेगा एंड इवन यू गेट स्पेस ऑन योर गूगल ड्राइव. तो फ्री के अंदर सारे टूल्स इनको यूपी से कौन सा मोह है जो बार-बार यूपी में डंडा किए पड़े. काइंडली आई थिंक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट आपका माइक इज ऑन. जितेंद्र जी आप थोड़ा माइक को अनम्यूट कर दीजिए. आई विल म्यूट योर माइक. आप अपनी तरफ से कर दीजिए, सब हो जाएगा. हाँ मैंने कर दिया सर, आई हैव डन इट. तो एक जो अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे टूल्स हैं जो कुछ तो पेड है और कुछ नॉन पेड है, बट नॉन पेड टूल्स की भरमार है हर डोमेन के अंदर. तो इवन आप देखोगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो जिसका नाम हम पावर पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोप्राइटरी टूल है. बट वी कैन मेक यूज ऑफ टूल्स लाइक गूगल स्लाइड्स, और जो अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ गूगल स्लाइड का, एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल. इसमें इतनी सारी फीचर्स हैं, यू कैन इनकॉर्पोरेट एनी वीडियो. तो मैंने अपनी स्लाइड के अंदर जो वीडियो इनकॉर्पोरेट किया है वो गूगल की स्लाइड्स को इस्तेमाल करके किया है. तो एनीबॉडी कैन मेक ए वेरी कंपेलिंग एंड पावरफुल प्रेजेंटेशन. तो वीडियो क्लिप और वॉइस ओवर and moving or still images in support of our verbal dialogue can be easily incorporated in our presentations. और आजकल इतने सारे इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स वगैरह आ रहे हैं कि क्लासरूम में भी आप ले रहे हो, तो यू कैन इंस्टेड ऑफ योर कन्वेंशनल बोर्ड, कन्वेंशनल बोर्ड इज वन ऑफ द टूल, बट बाकी का एक सपोर्ट के लिए आपके दिस व्हाइट बोर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल विच आर स्मार्ट इन नेचर, जिसमें आप पीपीटी भी प्ले कर सकते हो, वीडियो भी प्ले कर सकते हो. सो दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड टूल्स अवेलेबल.
अब जो छोटे छोटे टूल्स की बात करेंगे, आप देखोगे सबसे छोटा जो टूल आपने देखोगे कि हर कंप्यूटर में, वेदर आपके पास पेड टूल्स हैं या नहीं, एक टेक्स्ट एडिटर तो आपके पास होता ही है। जब भी विंडो आएगा उसमें आप देखोगे कि नोटपैड जरूर आता है। तो नोटपैड को आप खोलिए और आप अपना काम चालू करिए। जैसे टिपिकल एग्जांपल इज, यहाँ हमने नोटपैड को खोल लिया, फाइल आपने क्रिएट कर लिया और यू स्टार्ट टाइपिंग, ये टाइपिंग शुरू हो गई। तो दिस इज वन स्मॉल टूल विच इज रेडीली अवेलेबल। नोटपैड को और फर्दर रिच करने के लिए, क्योंकि नोटपैड में आप यू कैन नॉट मेक चेंज इन द फॉन्ट का जो बोल्ड है बना दिया, या इस तरह की चीजें नहीं है। तो उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस अवेलेबल है। और इन सबको छोड़िए, आप नोटपैड वगैरह पे भी नहीं करना चाह रहे, बट इफ यू हैव गॉट ए इंटरनेट अकाउंट, तो गूगल हैज प्रोवाइडेड गूगल डॉक्स। तो आप गूगल डॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग गूगल डॉक्स सर एंड गूगल स्लाइड्स? Yes, sir. We use Google Docs. हाँ करते हैं सर, सुदीप जी यूज करते हैं, और कौन करते हैं? रुपेश जी भी करते हैं। मैं भी करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। उस पर तो करेक्शन आपका बड़ा क्या- इजीली हो जाता है। तो कैसा एक्सपीरियंस है सर? एक्सलेंट सर, गूगल डॉक्स तो Excellent. एक्सलेंट। इसकी जो Convenience सबसे भी है, बड़ी बात यह है ना कि सर convenient भी आपको है। अपना प्रेजेंटेशन कहीं कैरी नहीं करने की हाँ, जरूरत है। शेयरिंग जस्ट में सेफर बहुत ही साइड पे आसान। ये है कि भाई आपने पेन ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क में लोड कर लो, बाई चांस नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अदरवाइज आपका दिस इज अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। तो दिस इज अनदर, ये सारे के सारे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। तो आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग एक्सेस टू क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस एंड एट लो कॉस्ट, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं। तो दिस इज अनदर। और इसके अलावा सो मेनी टूल्स इन फ्री डोमेन्स आर अवेलेबल, जिसके नीचे मैंने बहुत सारे ये इनके आइकॉन्स दिए हुए हैं। बट फॉर ए नॉर्मल पर्पज आई थिंक गूगल डॉक्स इज ए गुड टूल टू प्रिपेयर योर नोट्स, डॉक्यूमेंट योर थिंग्स। कहीं से आपको अच्छा मटेरियल मिला, उसको कट पेस्ट किया, देन आप उसको अच्छे से तराश लो, एंड फ्रॉम गूगल डॉक देन यू कैन टेक इट टू योर गूगल स्लाइड्स, राइट? देन नेक्स्ट आता है आपके किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर की जो इमेजेस को आप कैसे एडिट करेंगे। तो इमेज एडिशन के लिए सबसे इजीली अवेलेबल टूल कौन सा है सर? बताइए सर। जितेंद्र जी आप बताएंगे क्या? सर इमेजेस के लिए जो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो जैसे तो हम लोग जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि ये स्लाइड शेयर वाला काम कर रहे हैं, हाँ, इमेजेस के लिए जैसे ऑप्शंस हैं, जैसे आपने अभी ऑडियो वीडियो वाला लगाया था, डायरेक्ट लिंक ऑप्शन कर सकते हैं। तो उस हाँ। तरीके की हम कोई भी फाइल को सेव करके उसकी लिंक बना के हम सीधे क्लिक करेंगे तो वो इमेजेस ऑप्शन पे खुल जाएगा। इधर हम जिप फाइल को अपलोड कर सकते हैं जूम के थ्रू। बट जैसे आपने कोई भी इमेज ली तो उस इमेज को मैनी टाइम्स आपको लगता है कि यार इसको हूबहू मुझे नहीं डालना है, मैं या तो उसको ट्रिम करूं, उसकी काट छाट तो करूं, वो या सर उसमें कुछ दूसरी इमेज सुपर इम्पोज करके यू मेक ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट और उसको फिर आप अपने प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहोगे। तो So वो आपके पास एक इमेज एडिटिंग टूल होना जरूरी है। सर, वो इमेज एडिटर में जाके हम एडिट कर सकते हैं, इधर हम उसको क्रॉप कर सकते हैं, इधर कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट बहुत ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड सबसे कमेंट जो आता बढ़िया है। टूल अवेलेबल है ना आज का, जो जिसमें कहीं पैसा नहीं और हर कंप्यूटर में वो अवेलेबल होगा, दैट इज योर पेंट ब्रश। पेंट ब्रश जिसको बोलते थे पुराने टाइम में, आजकल पेंट ऐप बोल रहे हैं। एंड तो Yes, sir. पेंट ब्रश के अंदर आप जो जितना काम करना चाहो वो आसानी से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? और इसके अलावा आप देखोगे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का आता है, अडोबी का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, आपने देखा होगा, जिसमें लोग पूरी अपनी रोजी रोटी कमाने का इंतजाम कर लेते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ दैट फोटोशॉप एडिटर, जिसमें आप अपने तरह तरह के पम्पलेट्स बना सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, एंड व्हाट नॉट, शादी के कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, यू नेम इट, इट इज देयर। और इसके अलावा भी सो मनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर कैनवा का नाम आपने सुना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ कैनवा?
सुना है बट सर कभी यूज नहीं किया, सुना तो है। आप सर इसको भी देखिए, इसमें इन सब सॉफ्टवेयर क्या है, सारे के सारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और एंट्री लेवल पे देर आर नो चार्जेस। ये जो चार्जेस जो ये लोग लेते हैं वो लेते हैं कि एडिशनल कोई टेम्पलेट आपको लेना है, कोई इमेज आपको लेनी है, तो कुछ इमेज इनकी प्रोप्राइटरी नेचर होती है एंड यू हैव टू पे फॉर दैट इमेज एंड देन यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर प्रेजेंटेशन, बट अदरवाइज सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली फ्री होता है। सॉफ्टवेयर फ्री देंगे और उसके बाद एडिशनल चार्जेस आपके जैसे जैसे उनकी सर्विसेज आप यूज करोगे दे विल स्टार्ट चार्जिंग। तो ये सारे के सारे बड़े पावरफुल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें यू कैन एनहांस योर इमेज, आप इमेज को ट्रिम करके और मल्टीपल इमेजेस को आप वन इमेज की फॉर्म में कर सकते हैं। तो सो मेनी इस स्लाइड में मैंने कुछ नाम दे रखे हैं, और इसके अलावा भी आप देखोगे तो दीज विल बी रेडीली अवेलेबल। नेट के ऊपर डालो भाई इमेज एडिटर्स कौन कौन से हैं एंड यू विल गेट, और इनके सबके ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल। ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद हमने इमेज को कर लिया, टेक्स्ट को कर लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपके वीडियो के अंदर एक ऑडियो फाइल आपने डालना है। जब आप वीडियो ले रहे होते हैं या इवन वीडियो के ऊपर ऑडियो का ओवरले कर रहे हो, कई बार क्या होगा कि आपकी साउंड क्लियर नहीं है, साउंड आपकी बहुत ज्यादा हाई पिच पे आज चली गई, कोई ऐसा वर्ड है जो विच यू डोंट वांट टू रीच आउट टू योर ऑडियंस, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, और ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडासिटी। आई थिंक आजकल सभी प्रोफेशनल जो हम लोग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वी मस्ट मेक यूज ऑफ दिस फ्रीली सॉफ्टवेयर। इनमें इतने फीचर हैं, आप यूज करके देख सकते हो कि यार कितने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है एंड दे आर फ्रीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल। तो ये एक एडासिटी का सॉफ्टवेयर मैंने लिमिटेड यूज किया है एंड आई फाउंड इट वेरी इजी एंड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा कोई आपके नॉलेज में हो बताइए, ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता चलेगा। एनीबॉडी कैन ऐड फर्दर टू दिस एडासिटी के अलावा भी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया हो ऑडियो एडिटिंग के लिए? आई थिंक रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राय साहब? नहीं सर, हमने तो कभी यूज नहीं किया ऑडेसिटी, तो हाँ एक्चुअली ऑडियो अभी तक हमने कभी एडिटिंग नहीं किया हाँ, in ऑडियो any, का ये है ना कि एक तो नॉर्मल अपने माइक में बोल रहे हो, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड yes, हो जाता है, और फिर ये जो बहुत सारे yes, yes. जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक फिल्म वगैरह बनाने के लिए टूल अवेलेबल है, आप उसमें भी उसकी जी छोटी मोटी ट्रिमिंग कर सकते हो, बट वो इतना प्रोफेशनल नहीं है। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो एडासिटी जैसे हैं, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर, बट जी मैंने सिंस जी एडासिटी जी यूज किया है और फ्रीली अवेलेबल है और इजी टू इंस्टॉल, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इसके ऊपर हाथ साफ करिएगा एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी बिल्कुल बिल्कुल यूजफुल। सर, बिल्कुल सर। चलिए गुड। देन दूसरा है स्क्रीन कैप्चर का। अब जैसे ये मैंने कोई प्रेजेंटेशन किया, आप एक तरीका तो आप मेरे को रिक्वेस्ट करो सर ये स्क्रीन शॉट भेज देना मेरे को, बट आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर में ही स्क्रीन कैप्चर का एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। वुड एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड कि क्या चीज है? सर स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट जैसे, है, हाँ कैसे लेते हैं आप लोग? प्रिंट स्क्रीन है सर, प्रिंट F12 के स्क्रीन। बगल में। तो ये इतना जी पावरफुल है कि प्रिंट स्क्रीन को आपने दबाया है की को, और पूरा का पूरा स्क्रीन आपका कैप्चर हो जाता है, फिर और उसको उसके बाद उस स्क्रीन पेंट से में जो डाल के देन है, उसको फिर पेंट ब्रश में डाल के देन हाँ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ऑफ देखिए करके भी। हम लोग धीरे धीरे ओल्ड एज वाले भी सारे के सारे वी आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरी प्रोफिशिएंट, प्रैक्टिकली अपना काम चलाने लायक हम लोगों ने सारी ये स्किल्स हासिल कर ली, राइट?
कि प्रिंट स्क्रीन से किसी का भी इवन जो कॉपीराइटेड मटेरियल है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इवन जो कोई बंदा अपनी स्लाइड शेयर नहीं करना चाहे, कुछ भी नहीं करना चाहे, तो आप चाहो तो प्रैक्टिकली उसकी पूरी की पूरी स्लाइड्स आप कैप्चर कर सकते हो। वैसे उसको बोलो या मेरे को स्लाइड दे दो, मेनी टाइम्स ही में से नहीं नहीं यार दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, बट यदि आपके पास डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो प्रिंट स्क्रीन से यू कैन कैप्चर एनी स्लाइड। तो ये तो एक तरीका हुआ है कि भाई आप केवल एक स्लाइड, हाँ तो ये तो एक स्क्रीन को कैप्चर करने का। बट यदि आपको कंटिन्यूस बेसिस पे कोई भी चीज आपके स्क्रीन पे चल रही है, आपके कंप्यूटर पे चल रही है, उसका ऑडियो और वीडियो कैप्चर करना है, उसके लिए क्या टूल होगा? बताइए सर, उसके लिए कौन सा टूल होगा? सर अभी तक तो नहीं पता, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। या फॉर मी आल्सो। इसके लिए एक बहुत पावरफुल बढ़िया टूल है एंड दैट इज अगेन फ्रीली अवेलेबल है और आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है OBS स्टूडियो, ओपन ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड। तो जितने भी आप देखोगे कि बहुत से लोग जो प्रेजेंटेशन करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, तो देयर इज ए कंटेंट और एक साथ में उसके कोने में एक उसकी कमेंट्री देते हुए स्पीकर होता है। तो ये सारे के सारे जो बहुत आसानी से इस OBS स्टूडियो में बना सकते हैं और ये भी बहुत बड़ा प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, अगेन टोटली फ्री। तो आप सर ये लोग हमारे चाहें क्लास के लिए बहुत इजी हो जाएगा। है, हमारे क्लासेस के लिए, हम लोग के क्लासेस के लिए बहुत इजी हो जाएगा फॉर अस। मैं बता रहा हूँ सर, ऐसा है ना कि एक तो क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो ई लर्निंग का मार्केट है या डिजिटल लर्निंग स्पेस है, इट इज गोइंग टू गो अप मैनी फोल्ड। तो ये हम लोगों के लिए तो एक लाइफ लॉन्ग रोजगार खोलने वाली बात हो गई है कि आपको ये कुछ टूल्स में है, एक सब्जेक्ट के प्रति आपका को थोड़ा सा रुझान होना चाहिए एंड देन यू मस्ट बी हार्ड वर्क। क्योंकि कोई भी चीज ऐसा है कि एक बार सीखने से काम नहीं चलेगा, दैट इज ओनली वन प्री रिक्विजिट। उसको टूल्स को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, टूल्स को फिर किसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना चाहिए। अल्टीमेटली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर टूल्स, दे आर इंटरेस्टेड इन सम कैप्सूल, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस बढ़े, जो उनकी कंपनी में यूजफुल हो। तो आप ऐसे छोटे छोटे नगेट्स कोर्स पे बना सकते हो। और आजकल का टाइम में क्या हो रहा है कि सर कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े बनाओ, कोहेरेंटली कंसिस्टेंटली कोई चीज यदि आप बना देते हो तो वो बहुत बढ़िया से चलेगी। तो OBS स्टूडियो आपका एक हो गया, वेरी नाइस। अब उसके बाद आता है वीडियो एडिटर्स। तो वीडियो एडिटर में आप देखोगे कि क्या अवेलेबल है, बहुत आसानी से अवेलेबल जो है वो देखोगे आपका, आप अपने विंडो में टाइप करके देखिए, वीडियो। अब इसमें एक है वीडियो एडिटर और दूसरा है मूवी क्रिएटर। फ्री है, ये फ्री वीडियो एडिटर है। आपने इसको दबाया, तो ये वीडियो एडिटर का स्क्रीन आपका खुल गया। तो वीडियो एडिटर में एक तो आपका मूवी क्रिएटर है, इसके अलावा देर आर मैनी मैनी वीडियो एडिटर्स अवेलेबल। फिल्मोरा नाम का आपने नाम सुना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट फिल्मोरा? काइन मास्टर का नाम सुना किसी ने?
हाँ सर। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं ना आजकल, तो आपके फोन में आप फ्रीली डाउनलोडेबल है काइंड मास्टर को लोड करो और आप अपना छोटा सा वीडियो फटाफट बना सकते हो। एंड दे आर अगेन इतने रिच है, पावरफुल है कि एक बढ़िया यूजफुल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आप वीडियो बना सकते हो इनसे। तो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कर लिया, इमेज एडिटिंग कर लिया, ऑडियो एडिटिंग का टूल्स के बारे में जान लिया और वीडियो एडिटर्स के बारे में जान लिया। अब और कौन से टूल्स हैं जी? प्रेजेंटेशन टूल्स में जैसे हम बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सभी लोग इसके दीवाने रहे हैं। बट एक इसके साथ लिमिटेशन ये है कि ये पेड वर्जन आता है इसका। 365 अभी इनका एक क्लाउड सॉल्यूशन 365 है, जिसमें इट्स ए पैक ऑफ सो मेनी सॉल्यूशन, जिसमें आपका वर्ड भी मिलेगा, ग्राफिक्स के लिए भी टूल्स हैं, प्लस आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, एक्सेल भी उसके साथ होगा। बट अगेन वन हैज टू पे मनी फॉर दिस। तो आजकल मैं बहुत इसका ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ पावर पॉइंट का, रीजन बीइंग वो पेड वर्जन है, वो मिलता नहीं इतना आसानी से। तो गूगल के अंदर यूज करते हैं, तो गूगल में एग्जैक्टली इसके कंटेम्प्रेरी चीजें सारी अवेलेबल है। गूगल स्लाइड है, वो पावर पॉइंट है, डॉक है, वो आपका पावर इसका MS वर्ड है, इसी तरह से एक्सेल है। तो इसी में गूगल के अंदर एक एक्सेल का अकाउंट, गूगल शीट्स बोलते हैं उसको, वो अवेलेबल है। इसके अलावा गूगल स्लाइड के अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर, VSME, Autodesk and so many others are available, जो बहुत एडिशनल उनमें कुछ एक दो यूनिक फीचर होती है, और उस खास फीचर को यूज करने के लिए देयर आर पीपल जो इनको भी यूज कर रहे हैं। बट अपन लोगों का काम मोस्टली आई थिंक गूगल स्लाइड शुड बी ओके, और somebody has got license version of PowerPoint, so that will also be good enough. तो ये तो प्रैक्टिकली हमने सारे के सारे टूल्स जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में चाहिए होते हैं प्रैक्टिकली, ये इनमें आपका रीजनेबल लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अवेलेबल है, तो यू कैन मेक ए गुड क्वालिटी ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन। बट अगेन ये यूसेज आपको जो करना है वो केयरफुली प्लान आर्टिकुलेट करके कि भाई आपको आपके एंड कस्टमर को क्या चाहिए। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर वीडियो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑडियो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, ही इज इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग व्हिच इज ऑफ यूज टू हिम। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे ऑडियो वीडियो की जरूरत नहीं वहां पे भी आप लगाओगे तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन आपका हैवी हो जाएगा। तो इन टूल्स को इस्तेमाल करके अब कंपनीज धीरे धीरे बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। देयर आर कंपनी, बिकॉज आई वाज वन ऑफ द जूरी मेंबर जिसमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन L&D, तो ये ISTD वालों ने ही बनाया था, ये स्कोप के अंदर था। तो सो मेनी गुड कंपनी, जिसमें SBI का नाम भी होगा, L&T भी होगा, NTPC, BHEL एंड सो मेनी मोर कंपनीज, मतलब प्रैक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, वो उसमें आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो वन ऑफ द कंपनीज मेड ए गुड यूज ऑफ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे वो क्या करते थे कि अपने लोगों के लिए छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाते थे, और वो उसको अक्रॉस, बिकॉज देयर सेल्स फोर्स आर इन द रिमोट एरियाज, वहां पे नेट के कई बार इशू आ जाएंगे, तो बैंडविड्थ इज ए बिग इशू। तो उन लोगों ने इनोवेट ये किया कि यार व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ व्हाट्सएप। तो एक व्हाट्सएप तो हम लोग जो मोस्टली यूज करते रहते हैं, आया फॉरवर्ड कर दिया, आया फॉरवर्ड कर दिया। बट देयर आर पीपल हु आर मेकिंग गुड यूज ऑफ व्हाट्सएप। तो एक तो जस्ट ट्रेनिंग का हम बात करेंगे, बट दूसरा मैंने देखा कि कई लोग अपने इवन स्मॉल कंपनीज आर मेकिंग गुड यूज ऑफ रनिंग इन देयर बिजनेस। क्या करते थे कि कहीं से भी कोई चेक आया, जैसे उनके स्टाफ ने कहीं से कोई चेक लिया, वो चेक की फोटोकॉपी की और वो सीधा चेक के अंदर डाल दिया।
और उन लोगों ने एक ग्रुप इस तरह से बना रखे थे कि एक चेक कलेक्शन का, एक पेमेंट का, एक गुड्स रिसीट, इस तरह से 5-7 ग्रुप्स बना रखे थे एंड द होल इंफॉर्मेशन वाज रेडीली अवेलेबल एट द सेंट्रल लोकेशन इन द कंपनी, छोटी कंपनी। तो ये टूल्स कई बार आप देखोगे कि दे कैन बी पुट टू गुड यूज, बट आपका इंटेंशन और माइंड होना चाहिए कि इसको गुड यूज में करना है या जस्ट आपको जस्ट आया और फॉरवर्ड कर दिया, आपका टाइम निकलता जाएगा और उसका इफेक्टिव यूज कुछ नहीं होगा। बट पीपल आर मेकिंग गुड यूज ऑफ दिस, तो उस कंपनी को नंबर 1 पोजीशन मिला एंड इट वाज फैंटास्टिक कि द वे इसी तरह से कुछ लोग क्वालिटी इनिशिएटिव्स को कंपनी वाइड फैलाना है। अब जैसे मान लो आपको कहीं सेफ्टी के ऊपर कोई मैसेज देना है कंपनी वाइड, तो छोटे छोटे चंक्स बना के, तो ये नया कंसेप्ट आजकल चल रहा है, बाइट साइज लर्निंग, माइक्रो लर्निंग, बाइट साइज लर्निंग। तो ये मोबाइल फोन्स हैव गिवन ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पार्टिंग स्मॉल चंक्स ऑफ इनपुट्स, जिसमें एवी टूल्स को आपने इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्टिव बहुत ही वेल डिफाइंड एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ। क्योंकि बड़े प्रेजेंटेशन में तो यू कैरी सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर। यहाँ पे है कि भाई आपको फायर सेफ्टी के बारे में बात करनी है, तो आज फायर सेफ्टी के बारे में बात किया। कल को आपने कहा कि कोई गैस लीकेज सेफ्टी के बाद, नेक्स्ट डे आपने गैस लीकेज के ऊपर एक छोटा सा मॉड्यूल दे दिया। और मॉड्यूल बहुत बड़े नहीं होंगे, कोई भी आदमी आप देखोगे कि 1 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकता, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप लगे हुए 1 घंटे बाद, तो दैट इज अ टॉर्चर टू द लर्नर और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो टुडे टाइम है कि अटेंशन स्पेन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वी मस्ट मेक स्मॉल प्रेजेंटेशंस। तो ये बाइट साइज लर्निंग में क्या है कि एक तो मोबाइल लर्निंग का जबरदस्त स्कोप आया हुआ है आजकल। तो इस पेंडेमिक के पीरियड में आई सी इवन स्मॉल किड्स लाइक, जो मैं अभी अपने 5 इयर्स की जो डॉटर बना रही है, तो सी टेक 1 क्लास ऑन पेंटिंग। उसकी मम्मी उसके साथ बैठ जाती है, पूरा पेंटिंग का मटेरियल ले लेती है, और दूसरी साइड से द टीचर कीप्स ऑन टेलिंग कि आप ये कर लो, अब ये चीज करो, फिर ये ड्रा करो, एंड द चाइल्ड इज एंगेज्ड। सी द पावरफुल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो सिंपल टूल्स को इस्तेमाल करके, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो मोबाइल ने बहुत सारे रास्ते हम लोगों के लिए खोल दिए, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा खासा स्कोप है, प्रोवाइडेड हमारे पास थीम हो, हमारे पास एक रोड मैप हो। देन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ जेन वाई इन द वर्कफोर्स में जो नए बच्चे हैं वो तो फटाफट, मतलब एक अंगुली से पूरा मैसेज टाइप कर देते हैं। हम लोगों को टाइप करने में बड़ा टाइम लगता है, बट दे आर सो स्पीडी इन टाइपिंग। तो that is also fueling demand for e-learning materials, and then constant pressure to develop courses quickly at low cost. अभी बजट किसी के पास ज्यादा नहीं है, बजट थोड़ा बहुत अवेलेबल होगा तो वो आपका, यदि बहुत ही आपके पास यूनिक नॉलेज है तो उसका डेफिनेटली यू कैन चार्ज। जनरल नॉलेज तो यूट्यूब वगैरह पे इतना सारा अवेलेबल है, बट आप उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके इफ यू कैन क्रिएट सम यूनिक सॉल्यूशन तो आपकी डिमांड होगी। यूनिक कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाइए, और ये नीड बेस्ड होना चाहिए कि किसी की नीड, तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के साथ अलाइन करके यू डेवलप सम करिकुलम, बहुत बढ़िया चलेगा। अब ये तो हो गया कि छोटे छोटे पीसमेल में आपने ट्रेनिंग वगैरह कर, बट फाइनली जब तक इन सब चीजों को इंटीग्रेट नहीं करोगे तो कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि हर आदमी की जो लर्निंग रिक्वायरमेंट्स यूनिक होती है। आपको उसका लर्निंग प्लान बनाना पड़ेगा, जो उसके बॉस के साथ मिलके उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बैठ करके और उसको एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि आज की डेट में उसका स्किल लेवल कितना है और फर्दर उसका स्किल लेवल कितना बढ़ाना है टू गेट ए रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इस तरह की प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड तरीके से हो, उसके लिए एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसमें सर आप लोग अपना राय दीजिएगा कि किस तरह से प्लानिंग, टैलेंट डेवलपमेंट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है।
आपके कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, कोई आपका अपना आइडिया हो तो थोड़ा बताइएगा। आई थिंक सुदीप, रुपेश राय साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये हाँ, यस सर। एक्चुअली हमारी प्रीवियस कंपनी में था सर एलएमएस, और इसमें क्या था है? कि प्रीवियस कंपनी में हमारे यहाँ था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमारा हाँ, आईडी पर एक जो पोर्टल ओपन होता था, हाँ, उसमें हमारी जितनी भी ट्रेनिंग हमारी हुई थी, हमारी पूरी कॉम्पिटेंसी सेट उस पर अपलोड थी। और बहुत पूरा बढ़िया। जितना भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, जितना मैं अटेंड करता था, वो सारा उसमें लिस्टेड था, और उसका क्या हमारा प्रोग्रेस है, तो एज पर माई रिपोर्टिंग मैनेजर उसमें कमेंट्स भी होते थे। तो एक एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया था, और पूरा एक साल अगर आप डेटा देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हमारा क्या, हमने क्या लर्न किया, क्या हमारा स्टेटस था, कंप्लीट उसमें सिस्टम में था। तो पूरा मतलब कई सालों से लोगों के डेटा उसमें पड़े रहते थे। तो ये बिल्कुल सर, स्टार्ट हम आपने बहुत अच्छा बताया कि मेरे को कोई बता रहा था कि कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि यदि आपने ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं की तो आपका जी, अप्रेजल नहीं होता है। यस यस ऐसा भी आजकल या सुनने में आया है। देर आर कंपनी जो रियल लाइफ है, मतलब सुनने में नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऐसा यस हो रहा यस है कि यदि आपने यस यस वो सारी चीजें नहीं की, जैसे मिलिट्री के अंदर होता है ना कि भाई आपने ये कोर्सेज नहीं किए तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन। तो ये कंपनी साल भर के अंदर यदि आपने ये नहीं किया, वो उनको रिमाइंडर भेज देते हैं कि भाई पीपल रिव्यू इट क्वार्टरली। उनके बॉसेज रिव्यू करते हैं, फिर कमेटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इस आदमी का ये ड्यू था और ये इसने लर्न नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है कि एक तो आपको चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना, प्लस उसके बाद ये कि किसको क्या सीखना है वो भी तो जरूरी है। ये तो नहीं कि भाई आप जिस कंपनी में फार्मेसी वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कथक सीखना शुरू कर दिया, ये नहीं मैं तो लर्न कर रहा हूँ, तो देन इट इज नॉट अलाइन टू योर ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको यदि फार्मेसी के ड्रग डिस्कवरी में है तो आपको ये है कि ड्रग के बारे में ये मॉड्यूल्स आपको नेसेसरीली करने हैं, आपने कर लिए। फिर उसकी क्विजेज होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, और यदि आपका मिनिमम स्कोर हो गया तो यू आर कंसिडर्ड, यस आपने कर लिया, अदरवाइज आप दोबारा करिए। और इस तरह का जो हम लोगों ने एक ये हार्वर्ड मैनेजमेंटर लिया था, तो उसमें भी दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैड बोथ कंटेंट, जिसमें ऑडियो था, वीडियो था, एंड इवन इंटरेक्शन फैसिलिटी। बीच बीच में कोई एक एक्सपर्ट को बुलवा लिया, उसके साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन भी कर लिया, एंड फाइनली उसके बाद आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट यदि आपने एक मॉड्यूल का कर लिया, 2 मॉड्यूल, और जो टोटल जो मॉड्यूल्स का जब कर लिया तो आपको एक ओवरऑल सर्टिफिकेशन होता। और जो जिनके अच्छे आते नंबर आए उनको फैसिलिटेशन के लिए उसको चैंपियन डिक्लेयर कर दिया। वो दूसरे लोगों को जाके सिखा रहा है, अपनी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बता रहा है कि हाउ ही कंप्लीटेड, हाउ ही गॉट द स्कोर। तो इस तरह के काम इवन हमने भी अपने कंपनी में किया था। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत ही जरूरी है आजकल, यदि आपको स्पीडी ट्रेनिंग करनी है। और ये ऑडियो वीडियो वगैरह सब इंकॉर्पोरेट करके कोर्स मटेरियल आपको रेडीली अवेलेबल करना है। और फिर आप रेगुलरली उसमें कुछ राइट्स होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन राइट होते हैं, क्रिएटर के राइट्स होते हैं, आपके ट्रेनर के राइट होते हैं, और लर्नर के राइट्स होते हैं। तो क्रिएटर है वो पूरा कोर्स कंटेंट क्रिएट करता है, और उसके बाद इनमें छोटे छोटे टूल्स अवेलेबल भी होते हैं, कुछ इनमें बिल्ट इन होते हैं, कुछ एक आप बाई करके वो टूल्स इसमें प्लग इन जिसको बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसको, प्लग इन्स बोलते हैं। तो देर आर प्लग इन्स विच आर रेडीली फ्रीली अवेलेबल, एंड देन देर आर प्लग इन्स विच यू कैन बाई। जैसे क्विजेज के हो गए, आपके गेम्स के, छोटे छोटे गेम्स करने के, इसमें बहुत सारे वो हैं। और ज्यादा अच्छे क्विजेज वगैरह चाहिए तो जैसे आपके मंकी है वाला जो एक सॉफ्टवेयर है, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो स्पेशलाइज क्विजेज में करते हैं। तो ये सारे के सारे टूल है। तो दूसरा एक जो टूल हमने इवन अपनी कंपनी में भी इस्तेमाल किया था, दैट वाज मूडल। मूडल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल। और अब तो इसका क्लाउड में भी एक वर्जन आ गया है। तो दिस क्लाउड वर्जन एनीबॉडी कैन यूज इट। यदि आपके ऑडियंस 15 सब्सक्राइबर्स हैं तो फ्री है, और उससे ज्यादा होगा तो ये पेड वर्जन होता है। पूरी होस्टिंग वगैरह सारा आप उसमें कर सकते हो।
तो आप में से कोई भी अजय अपना इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग करना चाहता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसके ऊपर वो कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे somebody wants to be an expert on the presentation skills, तो LMS के अंदर आप पूरा का पूरा ये बना के आप अपने ट्रेनर्स को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन में भी आप उसको फ्री पोर्शन भी अलाउ कर सकते हो, और सर्टेन स्टेज पे लगता है कि भाई बहुत एडवांस स्टेज की कोई चीज है, यू वांट टू चार्ज फॉर दैट, तो इसमें इवन पेमेंट गेटवेज आर आल्सो अवेलेबल। पेपाल है और बहुत सारे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो एनीबॉडी हु मेक्स पेमेंट तो वो ऑथराइज हो जाएगा, और देन ही गेट्स एक्सेस टू द ट्रेनिंग मटेरियल। उसके अलावा उसको यदि हाइब्रिड वर्जन भी आजकल आ गया कि फर्दर डाउट क्लियरिंग सेशंस आप जूम के थ्रू, गूगल मीट्स के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू कर सकते हो। तो आई टेल यू ये इंडस्ट्री अभी अभी इवॉल्व हो रही है, एंड वी एज ट्रेनर्स आई थिंक we can make good use of this opportunity. So we have to learn the entire gamut of making good presentations which are really needed. आपको टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा कि कुछ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका करिकुलम कराना है, कोई लगता है CBSE के लिए तैयारी कराना है, कुछ आप चाहते हो कि IIT JEE के लिए तैयारी कराना है, तो 3-4 लोग आप मिलके और कंटेंट डेवलप करिए और स्टूडेंट को रजिस्टर करके, दैट्स हाउ। तो बहुत अच्छा इसमें स्कोप निकल के आ रहा है। तो इसके पहले मैं एक कोई ई लर्निंग कंपनी थी जो विच डेवलप्स बोथ कंटेंट एज वेल एज LMS। तो बहुत सारे PSUs में हम लोग उनके साथ जाते थे, एक्सप्लेन करते थे अबाउट देयर सॉफ्टवेयर। और इन सॉफ्टवेयर में इतने सारे रिच कंपोनेंट्स है, जैसे टू इम्प्रूव द एंगेजमेंट लेवल्स। आप देखोगे कि यदि किसी ने इतने सारे स्कोर अचीव कर लिया तो उसको बैजेज मिल जाएंगे। बैज मिलने के बाद दोस बैजेज कैन बी मोनेटाइज्ड। तो आपको कैंटीन से कुछ, कैफेटेरिया से कुछ सामान ले सकते हो। ये सब कुछ बहुत कुछ इन प्रोग्राम्स में इन्होंने ऐड करके रखे हुए। एनीवेज, अब नेक्स्ट जो वेव आने वाली है, और रादर कई जगह आ भी चुकी है, बट धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी अभी इम्प्रूव हो रही है। ये फ्यूचरिस्टिक है, बट बहुत फार डिस्टेंट फ्यूचर की नहीं है। तो आपके ऑडियो वीडियो क्लास के अंदर आप देखोगे कि AR stands for, what is AR in this case? जितेंद्र जी आप बताइएगा। देखिए AR stands for what? सुदीप जी चलिए आप बताइएगा। नो आइडिया सर। आपने नाम सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी। कई बार फिर आपने टीवी में बहुत सारी पिक्चर होगी ना कि जैसे लगता है कि सडनली आपके सामने डॉल्फिन आके खड़ी हो गई, पानी चारों तरफ आ गया, एज इफ यू आर पार्ट ऑफ द सी और डॉल्फिन के साथ आप प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जो टूल्स होते हैं, दोज आर नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। और उसी से सिमिलर कंसेप्ट है वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा रोल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं। आपको पूरा पावर प्लांट का वॉक थ्रू कराना है, और ये NTPC PMI में बहुत अच्छा टूल्स अवेलेबल है। उनके पास पूरा एक स्टूडियो बना रखा है, और आप वहां जाकर के पूरा का पूरा यू कैन डू द वॉक थ्रू इन ए पावर प्लांट। आपको लगेगा कि बिल्कुल आप बॉयलर के अंदर से जाते हुए ऊपर आपके सुपर प्लेटन है, हेडर्स हैं, ट्यूब्स के जंजाल में से आप गुजर रहे हो। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको करा सकते हो। तो ये लगता है कि आपको पूरा एक फीलिंग दे देंगे। इसी तरह से मान लो आपकी बॉडी है, अब बॉडी के अंदर से कैसे आपका फूड ट्रेवल कर रहा है, कहाँ पे आपका फूड पाइप है, फिर उसके बाद स्टोमक है, फिर आपका
छोटी आंत, बड़ी आंत, किस तरह से ये है, जूसेस पैंक्रियास से कैसे जूस आ रहे हैं, लीवर का कैसे फंक्शनिंग है, हार्ट की कैसे फंक्शनिंग है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। और बताइए कि आपके इन टेक्नोलॉजीज में, जो प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजीज में और क्या नई चीजें आ रही हैं, कि आप देखोगे इस बार वाले लेक्चर में मैंने ज्यादा फोकस जो अमर्जिंग टेक्नोलॉजी का किया है, क्योंकि आप ज्यादातर जितने भी आप मॉड्यूल होगा इसमें मोस्टली पीपल विल टॉक ऑफ फ्लिप चार्ट्स और आपके चार्ट्स किस तरह से बनाने चाहिए, फोन साइज क्या होनी चाहिए, 2002 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जाए। बट आज की डेट में मैनी टाइम्स मेकिंग ए फ्लिप चार्ट मे बी कॉस्टली, क्योंकि उसमें आपको चार्ट पेपर खरीदना पड़ेगा, आपको स्केच पेन खरीदने पड़ेंगे, स्टैंड खरीदना पड़ेगा। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये एक नॉर्मल ट्रेनर के लिए भी practically without investing a single pie you can make a compelling content जो कि engaging होगा, interesting होगा and enriching होगा बेसिकली, जो कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस। किसी भी टीचिंग का मकसद क्या होता है कि हाउ यू प्रोवाइड ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू योर ऑडियंस, यही तो है इसका। तो इमर्सिव लर्निंग के लिए AR VR ये आ रहे हैं। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में तो आप ये देखोगे कि इवन जैसे एक वाइब्रेशन की फीलिंग है तो वो ऐसे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगा देंगे कि आप जहाँ बैठे हो तो जबरदस्त जैसे भूकंप आया तो द होल थिंग स्टार्ट्स सेटरिंग, तो इवन बैठे बैठे आपको सेटरिंग का इफेक्ट भी होगा। यदि इंटेंसिटी आपकी ज्यादा है तो सेटरिंग लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से मान लो कहीं से आपका रेल का इंजन तेजी से आपके पास से गुजरा तो वो वाइब्रेशंस की फीलिंग आपको एक रियल लाइफ फीलिंग देता है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेंसर्स की कॉस्ट कम हो रही है, आपके एक्चुएटर्स की कॉस्ट कम हो रही है, मैकेनिकल पार्ट्स की चीजें कम हो रही हैं। तो इमर्सिव लर्निंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें आई थिंक मेनी सॉल्यूशंस कैन बी डेवलप्ड। अब समराइज करेंगे तो क्या है कि आजकल सबसे बड़ा जो समरी आप यदि देखोगे कि पूरे ऑडियो विजुअल प्रोसेस में एक चीज आपने देखी कि जो बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू इम्प्रूव द एंगेजमेंट। ये बिना टूल के और बिना इस प्रेजेंटेशन के यदि मान लो मैं बोलता तो कुछ देर बाद आपको लगता है कि मोनोटोनी है एंड यू माइट हैव गॉन टू स्लीप आल्सो, राइट। तो ये क्या है कि कंटिन्यूस बेसिस पे कोई नई चीज आती है, एक्साइटिंग चीज आती है तो इवन आदमी नींद में जाता है वो आंख खोल देगा, कहीं सडनली जबरदस्त साउंड का इफेक्ट आया एंड देन यू बिकम लाइक। तो इट चैलेंज द अटेंशन ऑफ द पीपल्स और द लर्नर्स एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट। किसी भी एक ऑडियो विजुअल का आप हमेशा ध्यान रखिए कि भाई इज इट हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द एंगेजमेंट, मेकिंग कंसेप्ट सिंपलर, then enhance imagination and develop the mental imagery। दूसरा है कि जैसे मान लो अभी किसी ने मार्स के ऊपर किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहां पे कोई रोबोट जाके चीज देख रहा है तो आप उसका वीडियो दिखाओगे तो ही विल बी इन ए पोजीशन टू यार मार्स का कलर कैसा होता है कि एक तरह से ये येलोइश टाइप का कलर होता है मार्स का, तांबे जैसा कलर जिसको कह सकते हो। तो आपके इमेजिनेशन को एक पंख लगाता है। ऑडियो विजुअल हेल्प्स यू टू इंप्रूव द इमेजिनेशन आल्सो। देन सबसे बड़ा इसका बड़ा रोल जो मुझे समझ में आता है वो है फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट थ्रू विजुअलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा रोल है। मैनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इनफैक्ट यूट्यूब में तो भरी हुई है डू इट योरसेल्फ का।
मेरा इन सब के साथ साथ मेरा टेक्निकल लाइन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कई बार यार ये बनाते हैं, चलो साइकिल को ई साइकिल कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई डब्बा कैसे बनाएंगे, यार इतना भरा हुआ है प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 4-5 घंटे दिन में इन्हीं में लग जाता है, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, तो डिस्ट्रैक्ट भी करता है, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू। जैसे अभी मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ कि जब ऑक्सीजन की कमी आई, तो सिंस माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड है, तो देखा कि यार इलेक्ट्रोलिसिस पानी का करोगे तो आप क्या करेंगे, एक में हाइड्रोजन एक उस पे आ जाएगी, एक पे ऑक्सीजन आ जाएगी, तो हाइड्रोजन आपको चाहिए नहीं, ऑक्सीजन को आप कैप्चर करो, 12 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई करो, पॉसिबल है तो आप उसको 24 वोल्ट की बैटरी दो, एंड देन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दो ताकि इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो, एंड यू विल फाइंड कि उसके बबल्स आपके आने शुरू होगी। एक टेप आपकी जिसको कहना चाहिए बॉटल, जो लिम्का या कोई भी लेकर नीचे से उसको काट दिया और ऊपर से यू इंसर्टेड ए पाइप, जो ढक्कन के साथ एक छोटा सा पाइप में, और आप उसको यू कैन टेक इट टू द पेशेंट की नोज में लगा दो, और धीरे 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 वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन उसके उसमें जाती रही, तो एटलीस्ट आपको कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिले, तो दिस इज वन मेथड। कुछ दिन बाद देखा तो ये सेम कंसेप्ट पे किसी ने वो वीडियो डाल रखा, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, इट वाज सो गुड। तो YouTube एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना नॉलेज दे भी सकते हो, अपनी चैनल क्रिएट कर सकते हो, और आपकी चैनल कब ज्यादा पॉपुलर होगी, जब आप अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने वीडियोस में यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस टूल्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, और एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, नहीं कि आपने विजुअल इफेक्ट्स इतने डाल दिए कि मेन थीम लॉस्ट कर दे, तो एक जुडिशियस यूसेज होना चाहिए। एंड देन जब बहुत अच्छे आपके वीडियो होते हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन होता है, तो लोगों को एक मोटिवेशन होता है कि भी हमें उसको करना चाहिए, आगे लर्न करने की उनकी इच्छा होती है। दिस इज अनदर एडवांटेज। बोरिंग होगा तो सोचो यार, लोग प्रेजेंटेशन के बीच में बंद करके चले जाए, राइट। देन दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको वो अपने क्लास में बच्चों को या अपने लर्नर्स को कोई ऐसा इफेक्ट दिखाना है कि ऑफ शोर में ड्रिलिंग कैसे होती है। नॉर्मल कोर्स में तो किसी को आप नहीं लेके जा सकते कि ओएनजीसी की ड्रिलिंग डेक पे आप लेके जाओगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर चाहिए, पास चाहिए, हजार्ड बहुत होता है। अब वो एक्सपीरियंस यदि आपको देना है तो इस तरह के इफेक्ट्स के थ्रू दे सकते हो। कोई पावर प्लांट का विजिट कराना है आपको, या कोई हजार्डियस फैक्ट्री है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, या जहाँ पे परमिशन आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में वाइल्ड लाइफ के तो कितने सारे आते रहते हैं, कुछ एक्सट्रीम चीजें कुछ लोग दिखाते हैं, तो वो सारे के सारे आप इसके थ्रू बच्चों को, लर्नर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को वो आप वो एक्सपीरियंसेस दे सकते हो। एंड एक चीज बड़ी है कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस बेसिस पे इम्प्रूव हो रही है, तो विद एवरी पैसेज ऑफ टाइम वी आर प्रिवी और हैव एक्सेस टू गुड सॉफ्टवेयर, गुड हार्डवेयर, और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल आने वाला है कि भाई मेरे को इस एरिया में कुछ इनपुट चाहिए, तो इमीडिएटली यू विल फाइंड कि कंप्यूटर ढूंढ के ला देगा आपको। बोर्ड्स हैं, चैट्स हैं, आप अपने प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड कर सकते हो, तो इंगेजमेंट लेवल बढ़ाने का एवी के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो कि आप अपने प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और फाइनली एज ए ट्रेनर हम लोगों का रोल इज टू फैसिलिटेट लर्निंग, क्योंकि हम लर्न करने से कोई फायदा नहीं है, हमें अल्टीमेटली जो आपके learners हैं which are going to contribute in the well-being of the organization or the society, उनको कैसे more engaging बनाए और more interested to learn बनाए, ये हमारा बड़ा रोल है। कंटेंट को कैसे डाइजेस्टेबल किया जाए, that is the purpose of any training, जिसको कहते हैं जैसे भोजन को इंटरेस्टिंग बनाने के बाद उसको
करते हैं, च्यू करने के बाद इट इज इजी टू डाइजेस्ट। तो सेम वे हमारा ट्रेनिंग मटेरियल इतना लूसिड होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि एनी पार्टिसिपेंट, और जो जब भी हम ट्रेनिंग मटेरियल बनाएं तो ये देखें कि ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई एंड कंसेप्ट डाल दें, क्योंकि आपके ट्रेनिंग बैच में देयर विल बी पीपल हु आर नोविस, देयर आर पीपल जो लगेगा कि यार उनको यार क्या है, बिल्कुल ही ये तो हमें सब आता है। तो एक जुडिशियस मिक्स होना चाहिए जिसमें लोअर एंड को भी कैटर करो और हायर एंड को भी कैटर करो। ऐसा नहीं कि आपने हायर एंड के चक्कर में लोअर एंड को टेक केयर किया, जबकि उनको सबसे ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़े। तो whenever you design your presentation materials, please take care of the segment जो कि बिल्कुल पिरामिड के बिल्कुल नीचे है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो के बिल्कुल लेफ्ट साइड में। और जब भी ट्रेनिंग मटेरियल आप बनाओगे तो मोस्टली आप ये कोशिश करिए कि जो 3 सिग्मा वाला सेगमेंट है, 97% वाले लोगों की नीड को आप एड्रेस करिए, और बाकी के लोगों को आप अपने पूछिए कि भाई दे आर मोर इंटरेस्टेड, तो ऑफलाइन पे ऑनलाइन पे दे कैन टॉक टू यू, और फिर फर्दर आप उनको एडिशनल रीडिंग मटेरियल या फर्दर इनपुट्स आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से ये हो गया, बट आई वुड डेफिनेटली नाउ एक्सपेक्ट, बीच में हम लोगों ने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया आज, कि और क्या क्या चीज हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया वही अल्टीमेट है, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, या और किसी चीज में आपको, सिंस आपको अपना डिप्लोमा भी लेना है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सीखने के बाद एंड इफ यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इफ देयर आर एनी डाउट्स, एनी डिस्कशन, वी कैन डिस्कस। राय साहब आपसे चालू करते हैं, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विल एटलीस्ट 1-2 मिनट अपना इनपुट्स देगा। सर बहुत ज्यादा तो हम लोगों ने बहुत यूज नहीं किया, बिकॉज हम लोगों का सब क्लासरूम में ही जनरली ट्रेनिंग होती थी और करते भी थे। है बट यूजेस जो है ऑडियो विजुअल्स के, जी, तो हमने बहुत ज्यादा तो यूज नहीं किया था ऑडियो विजुअल, बिकॉज जो वीडियोस और वो सब होते थे इंसर्ट करके दिखाते थे, बट क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम कर नहीं पाए। अच्छा, तो जैसे मान लो अब आपको एक छोटा सा, जैसे कैसे इसको इंसर्ट करते हैं यही देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। यस अब ये एक स्लाइड हमने इंसर्ट की, तो स्लाइड पे गए, लेट मी जस्ट, हियर इज द स्लाइड। अब हमने कहा न्यू स्लाइड, ये न्यू स्लाइड आ गई। यहाँ पे आपने अपना टाइटल वगैरह डाल दो, हाउ टू इंसर्ट वीडियो, ठीक। अब आपने कहा इंसर्ट, इसमें इंसर्ट में गए, तो इंसर्ट में आप चाहो तो इमेज इंसर्ट कर सकते हो। अब इंसर्ट कहाँ से कर सकते हो आप, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, देखो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ चीज आपने यूनिक अपना कहीं से आपको वीडियो मिल गया, या आपने अपने मोबाइल से कैप्चर कर लिया, या और किसी फ्रेंड ने आपको दे दिया, कंप्यूटर के ऊपर यदि कोई जी चीज जी लोडेड है, तो ये क्या आप इसको करेंगे, जी, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक पॉपअप आएगा और ये पूछेगा, तो ये जैसे मैंने देखोगे कि आपने ये एक जिप फाइल मैंने रखी थी, तो मोमेंट आप इसको ये करोगे तो ये इसको इसके अंदर लेके आ जाए। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, बट अदरवाइज द मोमेंट आप ये कहोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें
वीडियो जैसे करना चाहें। ये थोड़ा सा स्लो है। अब जैसे आपने किसका आप देखना चाहेंगे? आजकल कोरोना ही ज्यादा दिमाग पे चढ़ा रहता है, तो अदरवाइज कोरोना के अलावा भी आप चाहो कि कोई एरोप्लेन का आप देखोगे। अब ये जैसे आप चाहते हो कि आपके स्लाइड के अंदर ये पोर्शन जाना चाहिए, तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो कि क्या हुआ, आपके पावर पॉइंट पे आ गया। अब इसको आपने कहा प्रेजेंट करो। अब ये आपके नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब आपने कहा कि भैया क्लिक करो। सी व्हाट ए ब्यूटीफुल इफेक्ट। देखिए कैसे आपको पता चल रहा है कि भैया रनवे कैसा है, कॉकपिट कैसा है। ये चीज प्योरली यदि हम वर्बल तरीके से बताते तो ये इट वाज जस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वाओ ब्यूटीफुल। देखो कितना बढ़िया इफेक्ट आया। वाओ। देखा कितना एक्साइटिंग है। So wow. Good wow. हाँ तो राय साहब देखा कितना एक्साइटिंग इफेक्ट आपने अपनी यस सर, स्लाइड में डाल दिया। यस और सर, जो लिमिटेशन है वो आज सॉफ्टवेयर का नहीं है, टूल्स का नहीं है। जो भी लिमिटेशन है वो हमारी सोच का, हमारे जिसको कहते हैं ना स्टोरी बोर्ड जो बनाते हैं कि भाई हमें एंड यूजर को देना क्या है। राइट सर, और ये फील्ड आज से, जब मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था इधर एनआईटी की एक यूनिवर्सिटी है, एनआईटी यूनिवर्सिटी निमरा नाम, तो वहां पे उस टाइम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के ऊपर एमटेक लेवल के प्रोग्राम्स दे रहे थे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ऑडियो वीडियो कंसेप्ट और हाउ टू इनेबल लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत इंडस्ट्री उभर के आ रही है। और जितना जल्दी हम इसको कैच कर लेंगे, अपने आप को एम्ब्रेस कर लेंगे इसमें, आई थिंक वी विल बी मोर इफेक्टिव ट्रेनर्स। राइट सर। और बताइए सर, और क्या हो सकता है इसमें? जितेंद्र जी सर आप बताइए कुछ। जितेंद्र सर। हमको साथ ही जितेंद्र सर। I think Arnab Sengupta ji can contribute something on this. हाँ जी, अर्नब सेनगुप्ता सर।
चलिए, और anybody would like to say something before we end this session? हेलो, यस सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो के सर, के सर। Yes, sir. सो सर, इट वाज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया। इनफैक्ट कि आज जो आपने यू मेड माय लाइफ वेरी सिंपल, कि आपने ये कहा ना कि जितना जल्दी हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे, वी हैव टू अनलर्न द पास्ट, कि I know. हमें वो कुछ एक डेफिनेटली वो चाहेंगे, फ्लिप चार्ट भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, वो जो मटेरियल, बट दोज आर वन ऑफ द टूल्स इन आवर आर्मरी। बट जो बड़ा जो टूल है वो है कि हाउ डू वी एम्ब्रेस द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड क्विकली। और ये इसके डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, वो जब तक आप एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट बी इफेक्टिव ट्रेनर्स। तो आज का सेशन बहुत ही रिलेवेंट, और मैंने पूरा ये सोचा कि इसमें थोड़ा डिजिटल ओरिएंटेशन ज्यादा देंगे, और किसी को भी कोई बाद में भी अपने कोई वीडियो बना रहे, टूल्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो सिंस आई हैव गॉट सम हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन दिस एस्पेक्ट, तो आई विल बी टू हैप्पी टू हेल्प एनी वन ऑफ यू। यदि आप अपना कोई वीडियो बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन मटेरियल बना रहे हैं, उसको थोड़ा और प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए, तो वो कभी भी मेरे से आप लोग बात कर सकते हो। आपने तो प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, इंसर्ट नहीं कर वो दिया है, और इसके अलावा भी सर बहुत इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने वीडियो छोटे मोटे वीडियोस प्रेजेंटेशन बनाए हैं। दैट्स वेरी वेरी नाइस। आई थिंक जी जी, all will get benefited with this hands sir. on. बहुत Thank बढ़िया you, सर। thank you और very आप तो much. बिल्कुल विजनरी है, जिस तरह से आपने बताया कि भाई टेक्नोलॉजी के बिना कोई वो ही नहीं। मेरा स्टार्टिंग पिछले टाइम ये है कि हम लोग हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं, एंड एवरी टाइम वी अनलर्न थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। इनफैक्ट Right. यही एक फिलोसफी है जो हमें आगे कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोग्रेस करा रहा है। Right. अनलर्न एंड लर्न। Unlearn and learn. बहुत बढ़िया सर, चलिए ठीक है सर। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। You can leave, sir, for all. I think it will go. यस सर।